Formation of groups. There are a number of times where we need to form groups. In schools, in sports, even policemen form different groups for patrolling in different areas. Let us take such an example. For Republic Day celebration, different groups of students are formed to perform different programs. In how many ways 40 students can be grouped, such that 7 students are selected for national anthem, 15 for group dance, 3 for speeches, 10 for drama and 5 for patriotic songs. We are assuming that all the students are capable to be selected in any group. So how can we make these groups? In how many ways? How can we solve these questions? Let us see. Okay. The number of ways in which m plus n different things can be divided into two groups such that one of the contains m things and other n things is m plus n factorial upon m factorial into n factorial, where m not equal to n. Now what does this mean? Let us see. m plus n different things है हमारे पास, ठीक है, और इन्हें हम दो ग्रुप्स बना रहे हैं, एक में m थिंग्स और दूसरे में n थिंग्स. कितने तरीके से ऐसे ग्रुप बना सकते हैं? Which is equals to m plus n factorial upon n factorial m factorial. Quite easy. Let us take an example. In how many ways 8 people can be divided in two groups such that one contains 3 people and another 5 people? Simple. So we can write this 8 factorial upon 3 factorial 5 factorial. Now this can be extended to as many groups. For example, if there are m plus n plus p different things and we have to divide it in m, n and p groups, we can write this as m plus n plus p factorial upon m factorial, n factorial, p factorial. Okay. For example, in how many ways 9 people can be divided into 3 groups containing 2, 4 and 3 people? So this is simple. 9 factorial upon 2 factorial, 4 factorial, 3 factorial. Okay. Now this is not a new concept. We can do all these questions with the help of combinations too. Let us see. We have 9 people and we have to make 3 groups. We can also say that we select 2 people out of 9 people by 9C2. 9 लोग में से 2 लोग को चुनने के कितने तरीके हुए? 9C2. बचे कितने? 7. फिर 7 लोग में से 4 लोग को चुनने के कितने तरीके हुए? 7C4. बचे कितने? 3. 3 में से 3 को चुनने के 3C3. सिलेक्शन हम पढ़े ही हैं. नाउ वी कैन राइट दिस 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 7 factorial upon 4 factorial 3 factorial and 3C3 is 1. So yes, 7 factorial cancel. So this is equals to 9 factorial upon 2 factorial 3 factorial 4 factorial, which is same. So we can do all the equations with the help of combinations. Okay. लेकिन आप तो जानते ही हैं कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है. तो अभी से हम क्या करेंगे कि जितने भी ग्रुप बनाने होंगे तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल से हम कर देंगे. ठीक है. व्हाट इफ m इक्वल्स टू n? व्हाट इफ वी डिवाइड इन इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स? देखते हैं कैसे करते हैं. तो 6 डिफरेंट पीपल है हमें और 3-3 के ग्रुप में हमें बांटना है. तो हम क्या कहेंगे? 6C3. 6 में से किसी भी 3 को चुन लीजिए, फिर बचे 3 में से किसी भी, फिर 3 में से 3 को चुनने का 3C3. So 6C3 is 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial and 3C3 is 1. But here there is a one problem. What is the problem? मान लीजिए 6 लोग में से 3 हमने चुना, तो मान लीजिए ABC वो 3 लोग चुने गए, बचे कितने? DEF 3. तो ABC और DEF का 2 ग्रुप बन गया. जब 6 में से 3 चुन रहे हैं हम, तो एक बार DEF तो भी तो एक ग्रुप आया होगा हमारा, तो इधर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? ABC. तो एक ही ग्रुप 2-2 बार काउंट हो रहा है यहां पर. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे जो कि 2 बार काउंट होंगे, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप में आप डिवाइड कर रहे हैं. तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा. अब एक बात, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इक्वल नंबर्स में करेंगे तो जितने बार इक्वल नंबर्स आएगा उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होगा.
ठीक है। अगर आप 9 को 3 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 3 3, तो आप लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 3 के, विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होल क्यूब। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 बार आया है, 3 3 के 3 इक्वल ग्रुप बने हैं, तो आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जो ग्रुप्स बार बार काउंट हो रहे हैं वो हट जाए यहाँ से, ठीक है। अब सारे ग्रुप बनाकर एक बार देखिएगा, 6 से 3 आता है 20। अब सब ग्रुप बनाइएगा आपको तो 10 ही ग्रुप बन पाएंगे, तो वो तभी आएगा जब आप 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन डू दिस एग्जाम्पल इन नो टाइम। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 40। और कितने कितने ग्रुप बनाना है? 7 15 3 10 and 5. So quite easy. We write 40 factorial upon 7 factorial, 15 factorial, 3 factorial, 10 factorial and 5 factorial. This is the answer. Here no groups are equal, so no problem. Let us check another example. In how many ways 6 different toys can be distributed among 3 children equally? तो 6 खिलौने हैं और 3 लोगों को बांटना है इक्वली, तो इसका 2 का हम ग्रुप बना लेंगे। पहले कितने तरीके से बना सकते हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो ये 3 बार आया है, तो 3 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा। यहाँ पर एक्चुअली जो पावर होता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब तो ये हमें ग्रुप बन गया, अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, और ये इससे केवल ग्रुप बनता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये 3 फैक्टोरियल से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यूब। ओके, डू अनदर क्वेश्चन। Find the number of ways in which 8 constables can be assigned to patrol 3 villages if each villages require at least 2 constable. अब कितने तरीका से ग्रुप बना सकते हैं हम 8 कांस्टेबल का, ताकि 2 कांस्टेबल एटलीस्ट हर गांव में जाए, ठीक है। तो 8 हैं, 2 2 4, 2 को दिया एक और एक में 4 दे दिया। एक और ग्रुप हम बना सकते हैं 3 3 2। अब इसमें एक भी आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तो हमें नहीं चलेगा वो, क्योंकि 2 कांस्टेबल एटलीस्ट चाहिए। तो कितने ये ग्रुप बन जाएंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 बार आया। दिस इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 फैक्टोरियल 2 बार आया। सो these are the groups, and in how many ways we can send these constables 3 factorials to 3 different villages. So these are the 2 cases, so we add. So this is the answer. Now there is a question for homework. In how many ways 6 different books can be distributed among 3 students if there is no restriction in distribution? That is, each student can get any number